اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا بھی سکھائی، بہت ہی پیاری اور شیریں دعا۔ سورہ اسراء میں ارشاد ہے، اور دعا کرو پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا عزت کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال عزت کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا۔ مسلمان مظالم سہتے سہتے تنگ آ چکے تھے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ حالات کا یہ رنگ دیکھا تو پیارے نبی نے مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی تاکہ دن رات کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے۔ دین و ایمان کو جو ہر آن خطرہ لاحق ہے وہ خطرہ بھی ٹل جائے۔ مسلمانوں نے چوری چھپے مدینے کا رخ کیا، البتہ کچھ لوگ قریش کی گھات میں آ گئے، وہ ہجرت کا موقع نہ پا سکے۔ قریش نے انہیں گرفتار کر لیا، پھر بڑی بے رحمی سے ستایا، خوب ظلم کی بھٹی میں تپایا تاکہ وہ تاب نہ لا کر دین سے بیزار ہو جائیں، ایمان سے ان کا دل کھٹا ہو جائے اور بھولے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیں۔ لیکن خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ظالموں کا اصل نشانہ تھے، اپنے لیے حکم خدا کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کی خواہش تھی آقا کی اجازت ہو تو مکہ کو خیر بات کہیں اور مخلص ساتھیوں سے جا ملیں، ان ساتھیوں سے جنہوں نے اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑا تھا، ان ساتھیوں سے جنہوں نے انصار کے شوق ملاقات میں نہ مال کی پرواہ کی نہ اولاد کی۔ وہ انصار کون تھے؟ وہی خوش نصیب جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی، آپ کو حفاظت کی خدمات پیش کی تھی، اور جنہوں نے دست مبارک میں ہاتھ دے کر راہ خدا میں سرفروشی کا عہد کیا تھا۔ اللہ مہاجروں کا بھلا کرے، انہوں نے صرف خدا کے لیے کن کن نعمتوں سے ہاتھ دھویا، کیسی کیسی چیزوں پر صبر کر لیا۔ انصار کا بھی بھلا کرے کہ انہوں نے دینی بھائیوں کو اپنے یہاں بلایا، اپنے گھروں میں ٹھہرایا، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ ہجرت کا حکم آ گیا، آپ نے مدینہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ قریش کی بھی سازش مکمل تھی، سارا خاکہ تیار تھا۔ بات کیا تھی؟ مسلمانوں کی ہجرت کا بڑا اچھا اثر پڑا، دعوت کے لیے ایک وسیع میدان ہاتھ آ گیا۔ لوگ اسلام کی برکتیں دیکھ کر بہت متاثر ہوئے، بہت تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگے، ہر طرف اسلام کا چرچا ہونے لگا، مسلمانوں کا زور بڑھنے لگا۔ قریش نے یہ دیکھا تو بہت گھبرائے، انہیں محسوس ہوا اب شامت سر پر منڈلا رہی ہیں، طرح طرح کے خطرے سر اٹھا رہے ہیں۔ قریش و انصار میں نہایت زوردار جنگ کے بھی آثار نمایاں تھے، اس سے ان کے اور ہوش اڑ گئے۔ سوچا اس طرح تو ہمارا شام جانا بھی بند ہو جائے گا، تجارت بالکل ٹھپ ہو جائے گی اور ہم دانے دانے کو ترس جائیں گے۔ وہ دارالندوہ میں جمع ہوئے کہ یہی ان کا مشاورت گھر تھا، یہاں سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھے، کوئی ایسی تدبیر سوچنے لگے جس سے اسلام کا سیل رواں رک جائے اور چمنستان دین میں خاک اڑنے لگے۔ لوگوں نے مختلف رائیں پیش کی، ایک نے کہا محمد کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں اور کسی مکان میں بند کر دیں، دوسرے نے کہا خدا کی قسم اگر اسے قید کیا تو ہر طرف چرچا ہو جائے گا، پھر تو بہت برا ہوگا، مسلمان فوراً چڑھائی کر دیں گے اور جب تک اسے ہم سے چھین نہ لیں گے دم نہ لیں گے۔ تیسرا بولا اس کا یہاں رہنا اچھا نہیں، کہیں دور دراز علاقے میں چھوڑ آیا جائے، پھر وہ جہاں چاہے جائے اور جس جگہ چاہے رہے۔ چوتھا بولا یہ تو بڑی بودی رائے ہے، دیکھتے نہیں وہ کیسی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، کتنے سلیقے کی گفتگو کرتا ہے، منٹوں میں دل موہ لیتا ہے، ایسا کرنے میں تو خطرہ ہی خطرہ ہے، یا تو وہ کسی دوسرے قبیلے میں پہنچ جائے گا اور اپنی جادو بیانی سے انہیں ہم نوا بنا لے گا، ورنہ مدینے پہنچ جائے گا اور وہاں پہنچنا تو اور زیادہ خطرناک ہوگا، جاتے ہی وہ ساتھیوں کو ساتھ لے گا اور ہم کو پیس کر رکھ دے گا۔ سب ایک ساتھ بول اٹھے، پھر آخر ہم کیا کریں؟ آوازوں سے گھبراہٹ اور مایوسی ٹپک رہی تھی، یک ابو جہل کی پھنکار سنائی دی، ایک شکل ہے جو اب تک کسی نے نہیں سوچی۔ سب ابو جہل کی پھنکار پر چونک پڑے، جیسے انہیں امید کی کوئی کرن نظر آ گئی ہو۔ بولے ارے وہ کیا ابو الحکم؟ ابو جہل نے کہا میری رائے ہے کہ ہر قبیلے سے ایک پہلوان اور شیر دل جوان چنیں، پھر ہر ایک کے ہاتھ میں تیز تلوار دیں اور سب ایک ساتھ محمد پر ٹوٹ پڑیں، اس طرح اس کا کام تمام ہو جائے گا اور ہم کو ہمیشہ کے لیے آرام مل جائے گا۔ خاص بات یہ ہے کہ اس طرح خون تمام قبیلوں میں بڑھ جائے گا اور بنی ہاشم تمام قبیلوں کا مقابلہ تو کر نہیں سکیں گے، مجبوراً خون بہا پر راضی ہو جائیں گے۔ سب خوشی سے اچھل پڑے، خوب بہت خوب ابو الحکم، سچ مچ رائے تو یہ ہوئی۔ سب نے ابو جہل کو مبارکباد دی، مجلس برخاست ہو گئی، ہر ایک خوشی سے ناچ رہا تھا کہ گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، ان کی دعوت کا نام و نشان مٹ گیا، ان کی یاد بھی ذہنوں سے محو ہو گئی، ان کی دعوت سے دنیا ناآشنا ہو گئی اور اس پر گردش زمانہ کی کئی تہیں پڑ گئیں۔ لوگ گئے اور ان جوانوں کا انتخاب کرنے لگے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں۔
उन तलवारों का इंतजाम करने लगे जिन्हें जिस्म अतहर पर चलाएंगे। सूरह अनफाल में अल्लाह ताला ने इरशाद किया, और वो वक्त याद करो जब काफिर तुम्हारे बारे में चालें चल रहे थे कि तुम्हें कैद कर दें या तुम्हें कत्ल कर दें या तुम्हें जिला वतन कर दें। वो अपनी चालें चल रहे थे और अल्लाह अपनी चाल चल रहा था, और अल्लाह सबसे उम्दा चाल चलने वाला है। मुशरिकों ने कत्ल की स्कीम बना ली। इसके लिए हर एक ने कमर कस ली थी कि अब तो खून सारे कबीलों में बट रहा था, हर कबीले का उसमें हिस्सा लेना जरूरी था, और चूंकि सारे कबीले शरीक हो रहे थे, आले हाशिम बदला भी न ले सकते थे। उधर खुदा का नूर खंदाजन था बातिल की लियाकत पर। अल्लाह का फैसला था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जरा भी आंच ना आए। चुनाचे कुरैश की तदबीर उल्टी हो गई। वो खुद अपनी साजिश का निशाना बन गए। अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम की रहनुमाई फरमाई और मुशरिक अपना समूह लेकर रह गए। वो भयानक रात आ गई जिसमें मुशरिकों ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घात में बैठने का अज़्म किया। उन्होंने घर को घेर लिया। सबके हाथों में निहायत तेज तलवारें थीं जिनकी बाड़ों में मौत छुपी बैठी थी। अरब में जनाना मकान के अंदर घुसना मायूब था, इसलिए वो बाहर ही ठहरे रहे। मौके की ताक में लगे रहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलें और उन्हें ख़त्म कर दें। उधर अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर कर दी। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु भी साथ ही थे। उनसे फरमाया, मुझको हिजरत का हुक्म हो चुका है। दुश्मन आज घर को घेरे हुए हैं और मेरे कत्ल के लिए बेताब हैं। फिर फरमाया, अली मैं आज मदीने रवाना हो जाऊंगा, तुम मेरे बिस्तर पर सो रहना, मेरी सब्ज चादर ओढ़ लेना। अल्लाह ने चाहा तो कोई तकलीफ न पहुंचेगी। सुबह जाकर सबकी अमानतें वापस कर देना। बात क्या थी? कुरैश अगरचे आपकी जान के दुश्मन थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उनके अमीन भी थे। जिसे कोई अमानत रखनी होती आप अलैहिस्सलाम के पास रखता। उस वक्त भी आपके पास बहुत सी अमानतें थीं। यही वजह थी कि आप हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को साथ न ले गए, अमानतें वापस करने के लिए मक्के में ही छोड़ गए। अल्लाह, शायद जमीन व आसमान ने ऐसा नजारा कभी न देखा। एक तरफ खून के प्यासे दुश्मन हैं, हाथों में खून आशाम तलवारें हैं, घर को घेरे हुए हैं कि आप अलैहिस्सलाम बाहर निकलें और वो जिस्म मुबारक के पुर्जे कर डालें। दूसरी तरफ अमीन कुरैश की ये ईमानदारी है, अमानतों का उसके पास अंबार है। ये अमानतें किसकी हैं? इन्हीं जालिमों की, जो आप अलैहिस्सलाम के खून के प्यासे हैं। चाहें तो सारी अमानतें लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जाएं, न कोई आपका कुछ कर सके, न आपको कुछ कह सके। फिर उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नादार हैं, दौलत के शदीद हाजतमंद हैं। लेकिन ये सब कुछ एक तरफ, अमीन कुरैश की अमानतदारी एक तरफ, उसमें से एक सिक्का लेना गवारा नहीं। फिर यही नहीं, प्यारे भाई को भी वहीं छोड़ देते हैं। हाँ, उन्हीं खतरात के नरगे में। वो क्यों? सिर्फ इसलिए कि उन जालिमों की अमानतें उन तक पहुंचा दें। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फी अमानिल्लाह कहा और आप अलैहिस्सलाम रवाना हो गए। जुदा होते वक्त दोनों ने इंतहाई शौक व मोहब्बत के लहजे में कहा, अल्लाह को मंजूर हुआ तो फिर मदीने में मिलेंगे। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु बिस्तर मुबारक पर लेट गए और सब्ज चादर ओढ़ कर सो रहे। दुश्मनों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार तो था ही, एक एक लम्हा उन पर बार हो रहा था। देर हो गई तो रोज़न से अंदर झांकने लगे। बिस्तर मुबारक पर नजर पड़ी तो आपस में बोले, वो देखो मोहम्मद सो रहा है, वो अपनी सब्ज चादर भी ओढ़े हुए है। फिर वो सोने वाले का इंतजार करने लगे कि वो बाहर आए और सब एक साथ उस पर टूट पड़े। उससे पहले हुआ ये कि कुछ रात गुजर गई तो आपने एक मुट्ठी धूल ली, सूरह यासीन की इब्तिदाई आयतें पढ़ी और धूल उड़ाते हुए बाहर आ गए। उस धूल से जैसे कुरैश कुछ देर के लिए अंधे हो गए। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख न सके। आप प्रोग्राम के मुताबिक अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु के घर आ गए। उससे 2-3 दिन पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु के घर गए थे। दोपहर का वक्त था। दरवाजे पर दस्तक दी। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु बाहर आए। नजर पड़ते ही बेसाख्ता बोले, जरूर कोई बात है कि हजरत ने इस वक्त जहमत फरमाई। इजाजत के बाद आप अलैहिस्सलाम घर के अंदर तशरीफ ले गए। फरमाया, यहाँ कौन लोग हैं? जरा देर के लिए उन्हें हटा दो, कुछ मशवरा करना है। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल, यहाँ आपकी महरम के सिवा और कोई नहीं। तब तक आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी हो चुकी थी। फरमाया, हिजरत की इजाजत आ गई है, मक्के से अब हमें भी चलना है। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने बेताबी से कहा, मेरे माँ बाप आप पर फिदा, क्या मुझको भी रफाकत का शर्फ हासिल होगा? क्या सफर में मैं भी आपके साथ रहूंगा? फरमाया, हाँ तुमको भी चलना है, तैयार हो जाओ।
हम दोनों साथ चलेंगे। ये सुनना था कि उनकी आंखों में खुशी के आंसू तैरने लगे। अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मैंने कुछ सामान तैयार किया है जो जिहाद में काम आएगा। सफर के लिए 2 ऊंटनियां भी तैयार कर ली हैं। अब्दुल्लाह बिन अरकत से भी बात कर ली है, सफर में इससे सहूलत रहेगी। फरमाया, अभी ऊंटनियों की जरूरत नहीं, पहले तो हम जुनूब का रुख करेंगे, जबल सौर की एक गार में कुछ दिन ठहरेंगे। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु समझ गए इसमें क्या मसलहत है। इससे पहले भी वो बारहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैरत अंगेज सूझबूझ का तजुर्बा कर चुके थे। जानते थे आप कितनी बारीक तदबीरें करते हैं कि दुश्मन अपना समूह लेकर रह जाते हैं। जबल सौर मक्के से जुनूब में है, तकरीबन 5 मील की मुसाफत पर, और यमन के रास्ते में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझते थे हर शख्स जो सुनेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से चले गए, समझेगा वो मदीने ही के रास्ते में गए होंगे और शुमाल की तरफ दौड़ेगा, क्योंकि मदीना मक्के से शुमाल में है। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने ऐसा नक्शा बनाया कि पीछा करने वाले नाकाम होकर लौट जाएं। उनको पता भी न चले कि आप अलैहिस्सलाम किधर गए और कहाँ गए। मक्के की आखिरी रात जबकि दुश्मनों ने घर को घेर लिया था, सीधे आप अलैहिस्सलाम अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पहुंचे। उनको साथ लिया। घर के अक़ब में एक खिड़की थी, उससे निकल कर बाहर आए और रात के पुरसुकून और तारीक सन्नाटे में तेज तेज कदम बढ़ाने लगे। मक्के से बाहर पहुंचे तो जुनूब का रुख किया और गारे सौर की तरफ तेजी से बढ़े। सुबह तड़के ही हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की आंख खुल गई। वो बिस्तर छोड़कर उठ गए। आहट हुई तो दुश्मन भी चौकन्ने हो गए कि अब काम करने का वक्त आ गया। लेकिन ये मोहम्मद के बिस्तर से कौन उठा? लोग बार बार बेताबी के साथ रोज़न से अंदर झांकते और हैरान होकर वहां से हट जाते। ये सोकर उठने वाला मोहम्मद तो नहीं, ये तो अबू तालिब का बेटा अली है। अरे ये क्या हुआ? अरे मोहम्मद कहाँ गए? घर तो हर तरफ से हमारे घेराव में था, फिर वो किधर से निकल गए? ये वो अल्फाज थे जो बेइख्तियार उनकी जबानों से निकले। वो बिल्कुल हैरत की मूरत बन गए थे। क्या हम रात भर अली के लिए बैठे रहे? क्या हमने अली को मोहम्मद समझ लिया था? अली आज मोहम्मद के बिस्तर पर क्यों सोए और मोहम्मद अलैहिस्सलाम कहाँ चले गए? हर एक बदहवासी में एक दूसरे से पूछ रहा था, लेकिन जवाब देने वाला कोई न था। कुछ ही देर में और आदमी भी आ पहुंचे। देखते देखते लोगों की भीड़ लग गई। लोग बेताबी से चले आ रहे थे कि देखें मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ। यहाँ पहुंचे तो मालूम हुआ मोहम्मद अलैहिस्सलाम तो कहीं चले गए, वो तो उनके हाथ ही नहीं लगे। सब हैरान रह गए, गम गुस्से से बदहाल हो गए। घर में घुसकर अली रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि तुम्हारा साथी कहाँ है? जवाब मिला, मुझे नहीं मालूम। वो अली रज़ियल्लाहु अन्हु को पकड़ कर बाहर लाए। बेतहाशा उन्हें पीटते रहे कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम का पता चल जाए, लेकिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु बार बार यही कहते रहे, मुझे नहीं मालूम। जब वो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कुछ उगलवा न सके तो उन्हें लेकर मस्जिद हराम चले गए। वहां उन्हें कैद कर दिया। वहां भी उनको रहम न आया, बराबर सताते रहे, यहाँ तक कि कुछ रिश्तेदार बीच में पड़े। इस तरह कहीं जाकर उनकी जान छूटी। जिस रोज मुशरिकों ने कत्ल की स्कीम बनाई, उसी रोज आप अलैहिस्सलाम उनके हाथ से निकल गए। इसका मुशरिकों को सख्त सदमा हुआ। गुस्से से वो दीवाने हो गए। बदहवासी के आलम में इधर उधर ढूंढने लगे। कोई मदीने की समत दौड़ा। कुछ लोग लपक कर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर गए, क्योंकि वो जानते थे कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आपके गहरे दोस्त हैं, आपको उनसे खास लगाव है। उन्हीं लोगों में अब्बू जहल भी था। कुंडी खटखटाई तो बड़ी बेटी अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हु निकली। दुश्मनों ने सवाल किया, बाप कहाँ है? देखो सही सही बताना, झूठ ना बोलना। अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूरी बेखौफी से जवाब दिया, अल्लाह न करे मैं झूठ बोलूं। झूठ बोलने की क्या बात है, मुझे कुछ पता नहीं कि वो कहाँ हैं। दुश्मन समझ गए कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही फरार हो गए। अबू जहल गुस्से से भरा हुआ तो था ही, बदबख्त से बर्दाश्त न हुआ। पूरी कुव्वत से मासूम गाल पर एक चांटा रसीद किया। कान से बाली छटक कर दूर जा गिरी। फिर दुश्मन लौट आए और कोई ऐसा शख्स तलाश करने लगे जो पैरों के निशान पहचाने और उनकी रहनुमाई करे। तलाश के बाद एक आदमी मिल गया जो पैरों के निशान पहचानने में माहिर था। नाम उसका सुराका बिन मालिक था। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आशिक़ रसूल रज़ियल्लाहु अन्हु के पैरों के निशानात देखता हुआ चला। पीछे पीछे कुरैश का एक मजमा था। चलते चलते मक्के से बाहर आ गए। अब सुराका ने जुनूब का रुख किया और कोहे सौर की तरफ बढ़ा। लोग सख्त हैरान थे। हर एक ताज्जुब से कह रहा था, आखिर वो किधर गए, जुनूब की तरफ या शुमाल की तरफ? दुश्मनों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन वो सुराका के साथ साथ चलते रहे कि शायद वो कामयाब हो जाए, शायद उनका पता चल जाए।
सुराका रेत पर पैरों के निशान देख देख कर चलता रहा। फिर वो कोहे सौर पर चढ़ने लगे। अल्लाह ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया था कि वो दुश्मनों की साजिश को नाकाम कर देगा और आप पर जरा भी आंच न आने देगा। भला उससे बढ़कर सच्चा कौन हो सकता है। सुराका पहाड़ पर चढ़ गया। दुश्मनों का काफिला भी साथ था। फिर अचानक वो रुक गया। चेहरा उदास था, इंतहाई हैरानी और घबराहट का पता दे रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब कहाँ जाए और किधर जाए। दुश्मनों ने ये कैफियत देखी तो पूछा, भाई सुराका, क्या बात है, रुक क्यों गए, खैर तो है? सुराका ने सामने एक पत्थर की तरफ इशारा किया। बोला, इस पत्थर तक तो वो दोनों आए, फिर नहीं मालूम कि किधर गए। ये कहना था कि एक कहा बुलंद हुआ, अरे सुराका, आज तुम्हें क्या हो गया? खुदा की कसम, इस तरह तो तुम कभी न बहके। कुछ फासले पर एक चरवाहा दिखाई दिया जो अपनी बकरियां चरा रहा था। दुश्मनों ने सवाल किया, क्या इस पहाड़ पर दो आदमियों को चढ़ते हुए देखा है? चरवाहे ने जवाब दिया, मैंने तो किसी को देखा नहीं, लेकिन देख लो, हो सकता है दोनों गार में हों। कुरैश तेजी से पहाड़ पर चढ़े, फिर बेतहाशा गार की तरफ लपके। तीर, तलवार और लाठी सबसे मुसल्लह। हर एक की तमन्ना थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने का सेहरा उसी के सर बंधे। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम गार में खड़े नमाज में मसरूफ थे और यार गार पास ही बैठे थे। दिल धक धक कर रहा था कि कहीं जालिमों की नजर आप अलैहिस्सलाम पर न पड़ जाए। दुश्मनों की आवाजें भी कानों में आ रही थीं। उनके रुख का भी अंदाजा हो गया था और अब तो पैरों की आहट, लाठियों की खटखट और चीखो पुकार की खौफनाक आवाजें करीब तर होती जा रही थीं। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु चुपचाप थे, निगाहें आप अलैहिस्सलाम पर गाड़े हुए। रह रह कर दिल चाहता कि काश मैं आप अलैहिस्सलाम को दिल के अंदर छुपा सकता, काश मैं आपको अपना जिस्म ओढ़ा सकता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए। उनकी जान खतरे में देखकर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खौफ और घबराहट से बदहाल थे। चेहरा उतरा हुआ था, दिल बैठा जा रहा था। आप अलैहिस्सलाम सब भांप गए। फौरन ढारस बंधाई, घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। कुरैश का एक आदमी तेजी से गार की तरफ बढ़ा। अभी कुछ दूर ही था कि अचानक रुक गया, फिर उल्टे पांव लौट पड़ा। हसरतो अफसोस से चेहरा जर्द था, यासो नाउमीदी में गर्क था। उसके साथी भी पीछे पीछे तेजी से बढ़ रहे थे। उसको देखकर वो भी रुक गए। साथियों ने कहा, क्या बात है, गार में झांक के बगैर क्यों लौट पड़े? मायूसी से उसका दिल डूबा जा रहा था। उसने कहा, अभी वो पैदा भी न हुए थे, उस वक्त से इस पर मकड़ी का डेरा है। गार के मुंह पर दो जंगली कबूतरों का घोंसला भी है। रास्ते ही में दरख्त भी खड़ा है। इससे मुझे अंदाजा हो गया कि इसके अंदर कोई नहीं हो सकता। ये आवाज अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी सुनी। समझ गए अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाना चाहता है। उसी के ये सारे इंतजामात हैं। दुश्मन गार के मुंह तक पहुंच गए थे, वहीं इधर उधर टहल रहे थे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उनके पैरों को देख रहे थे, लेकिन खुदा का करना किसी ने झांक कर गार के अंदर न देखा। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपके कान में आहिस्ता से कहा, इनमें से किसी की अपने पांव पर नजर पड़ जाए तो हमको देख ले। आप अलैहिस्सलाम ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की ढारस बंधाई। अबू बकर, उन दो के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह है? फिर दुश्मन गार के पास से चले गए। अब वो पहाड़ से नीचे उतरने लगे कि जाकर दूसरी जगहें भी देखें। इतनी दौड़ धूप और तलाश जुस्तजू के बावजूद नाकामी हुई। फिर भी उनके हौसले पस्त न हुए। वो वैसे ही दौड़ धूप में लगे रहे, क्योंकि कुरैश ने ऐलान किया था कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ कर लाएगा 100 ऊंट इनाम पाएगा। हर एक चाहता था ये 100 ऊंट उसी को मिलें। इस लालच के पीछे वो दीवाने थे। कैसी तकान और कैसी जहमत, सबसे वो बेगाना थे।